बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी वेडनेसडे 6 टू 7 पीएम मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिस पे हम आपके कॉल हैं एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आप किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए कोशिश करें कि जब आप सवाल करें तो प्लीज़ मुख्तसर हो। और साथ ही साथ ये है कि जब आपका फ़ोन आप सवाल पूछ लें और आप कोशिश करें कि फ़ोन बंद करके फिर टीवी पे आंसर सुनें, ताकि फिर हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर, क्योंकि ये प्रोग्राम जब हम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि क्या उस वक़्त आप एप्लीकेशन करेंगे या फर्दर लेट करेंगे। तो जब भी आप मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जब आप एप्लीकेशन करें या कोई वीज़ा अप्लाई करें, तो उस वक़्त के जो लॉज़ हैं या जो गाइडेंस, जो पॉलिसी है, उसको लाज़मी या खुद स्टडी कर लें, या अगर आप किसी को आपको जानने वाला हो उससे अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन नहीं तो फिर मेक श्योर करें कि आप किसी वकील से, सॉलिसिटर से या रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस लाज़मी कर लें। ये ना हो कि आज जो आप वीडियो सुन रहे हैं, ये 6 महीने बाद उसमें कुछ चेंजेस आ जाएँ और आप हमारी एडवाइस पे इस पे रिलाई करें कि जो आज हम रिकॉर्ड, तो कोई भी टूल हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे, टीवी पे या फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट पे। तो इसलिए हमारा ओपन एंड क्लियर एक मैसेज होता है तमाम हमारे व्यूअर्स को, हमारे कॉलर्स को, कि प्लीज़ बाय द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन यू शुड मेक श्योर कि व्हाट्स द अपडेट लॉज़ क्या कहते हैं, व्हाट्स द पॉलिसी क्या है, और उसके बाद उसके कोई भी ऐसी गाइडेंस है तो यू शुड बी गो थ्रू, or you should speak with someone who knows very well, or at least get the opinion and advice from the solicitor. Otherwise, if something goes wrong, unfortunately, तो वो फिर आपके लिए बेहतर नहीं होएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये कि प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करें, लेकिन अगर आपका कोई मसला कोई डिटेल चाहिए आपको या मैटर डिफरेंट हो, आई थिंक कॉल आ रही, साथ साथ लेते हैं आज की कॉल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, हिना बात कर रही हूँ। जी मैडम, फरमाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच। You are best from in the UK. Thank you much. Alhamdulillah, I've got my second extension. You are best team. Thank So you. I've got a question, sir. Yeah, please. Sir, I want to apply for my benefits. My two children are British. Right. And my son is 15 years old, and I've got a leave train. Uh-huh. So I'm separate from my partner. For the change of circumstance application, just tell me again how I can apply for the change of circumstance, or any legal way for the settlement for me, sir. Okay, no problem. Hina, you can first of all thank you for your appreciations and kind word. I think now I recognize your voice. Hina, now you can answer. Okay, thank you. Hina, you can listen the answer on the TV. So nice of you. जब हमारे क्लाइंट रिजल्ट के बाद अप्रिशिएट करते हैं, खुशी होती है। Thank you. First of all, as you mentioned, you are intent to make the applications for change of circumstances. Yes, you can make the application. The law say if unfortunately due to any reasons your financial is you're facing the hardship of the finance, yes, you can make the application to the Home Office to explain what's happened, how you are facing the financial issues. You are unfortunately in a vulnerable position. You can't provide the food, the accommodation to you and your family, if until unless the government or the council is not supporting you. So for the application, of course, you can make the online application, which is called is change of circumstances application, and you can provide all your bank statement at least 6 months, and the rest of all the paperwork, or the reasons and the claim, or you can make a statement as well. But normally, if you grant a visa in last 2 years, 3 years,
then there's a less chance you need to go for the biometric, because they can trace your biometric and picture from your last application, or they ask you, okay, could you please send the picture? They get the picture from you, and the biometric they can trace last applications. And the application, as I said, is online. Provide all the documents by scan and upload, and then there's no fee on this application. It's free of charge. You can make the application, and I hope they will decide in 4 to 8 weeks. And after granting you eligible to get the benefit, then you can show to the local council, tell them, okay, my application, I made the application to the Home Office. This is an outcome of my action, and it is allowing the social service, whatever they are, the UC, it's all in normally the UC, universal credit, and you can apply for you and for your kids and family. I believe, if unfortunately, as you mentioned, circumstances, you have a good chance you get the positive response from the Home Office. Thank you very much, sir. Oh, you're the online as well. Thank you, Hina. I think was you listen to TV. Right. No problem, madam. You can application, as I explained, all the paperwork and submit, and there's a good chance you can get the result in 4 to 8 weeks. But one thing I need to be explained, I think other call as well. Just 1 second, as someone's other calling as well. Uh, um, uh, which I'm just trying to say, in the last 6 month, or the government, what they do, they quarterly they issue the report. In the last 3 quarters, I'm saying three last they publish the reports. In the report saying the normal change of seven application they are considering in 6 to 8 weeks, and the application, as they set the record, is showing that 89% or the 92% application has been successful. It means if you make a proper application, provide all the circumstances, and give their documentary evidence to showing your finance for last 6 months. If you had a job before and now unfortunately you not work anymore because due to the separation, or because you need to look after your kids as well, yes, you can explain, but documentary evidence should be must to provide as much as possible. Because if you provide all the documentary evidence, the immigration officer or the visa officer or the application assessor will be in a better position and will be in a comfortable zone to take a decisions in the favor. I think another question. Hello. 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 मैंने ना रियाज कौर जी से बात करनी है। जी मैडम, आप लाइव हैं, मैं रियाज को बात कर रहा हूँ, बोले सवाल क्या आपका जी? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ना इस कंट्री में पिछले नियरली 35 साल से हूँ इस कंट्री में, और मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है। राइट। तो जब ये यूरोपियन की बात चली तो मैंने होम ऑफिस वालों को इत्तला की कि मुझे यहीं पे रहना है। तो उन्होंने मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे इंडेफिनिट मैंने वीजा दे दिया। तो जो रेफरेंस नंबर वहाँ पे आ रहा था ना, तो मैंने उसका एक बार प्रिंट आउट निकाला तो निकल आया। तो मैंने दोबारा से वही रेफरेंस नंबर डाल के मैंने दोबारा से, तो वो बोलने लगे कि हमारे पास कोई नो इन्फॉर्मेशन फाउंड। तो मैं उसके लिए मैं बड़ी हैरान हूँ कि भी मैं क्या करूँ, क्या दोबारा से होम ऑफिस को मतलब इत्तला करूँ? अब मुझे अच्छा आप बताएं कि आप 35 ईयर्स से इन यूके में हैं, राइट? हाँ जी, मेरी बेटी का भी हुआ है। ओके, राइट। एंड आपने कहा कि आपके पास सेटलमेंट वीजा भी आ गया था, व्हिच इज कॉल्ड इंडेफिनिट। हाँ जी, यूरोपियन सेटलमेंट वीजा, हाँ जी, फॉर इंडेफिनिट स्टे, वो आ गया था। ये कब मिला था आपको जी? ये मैंने 2019 में अप्लाई किया था, तो नियरली आ गया था बहुत जल्दी। 2018 में या 19 में मैंने। और आपने नेशनलिटी क्यों नहीं अप्लाई की यूके की? हाँ जी, आपने नेशनलिटी क्यों नहीं अप्लाई की अभी तक? उसके लिए मुझे नहीं लगता कि भी मैं क्वालिफाई करती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी देखिए 73, 72, 73 है। तो मैंने काम नहीं, मतलब इतना नहीं काम किया था यहाँ पे, तो क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी वगैरह थी।
तबीयत ठीक नहीं थी तो इनकैपेसिटी बेनिफिट पे रही हूँ, तो मैंने इसलिए अभी तक पासपोर्ट के लिए नहीं अप्लाई किया। ओके, चलो। अब 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि आपने जो ये आपके माइंड में एक फ़ियर है या थ्रेट है कि आपने काम नहीं किया तो आपको नेशनलिटी नहीं मिलनी, ये टोटली मैं रॉन्ग तो नहीं कहता, लेकिन ये आपका फ़ियर ही कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास जब इंडेफिनिट हो जाए यहाँ पे, तो फिर अगर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप इफ़ जो कंडीशन पूरी कर रहे हो, तो यू बी क्वालिफाइड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, तो आपको करना चाहिए था और आपको अभी भी कर लेना चाहिए जल्दी से। अच्छा, सेकंड पार्ट ये आता है कि जिन लोगों के पास यहाँ पे सेटल इंडेफिनिट था, तो जब ने ब्रेक्जिट साइन किया है यूरोप के साथ, तो ये डिसाइड हुआ था कि आपके पास 1 ईयर या 2 ईयर जो भी ग्रेस टाइम था, वो दिसंबर 2020 हो गया था। फिर हमें ग्रेस टाइम मिल गया 6 मंथ का, व्हिच इज़ फिर एक्सपायर ऑन द 30th जून 2021, अभी उसको साल हो गया ऑलमोस्ट। उसके अंदर क्या था कि जिन लोगों के पास पुराने लॉज के तहत सेटलमेंट या सेटलमेंट था, उसके वीज़े या सेटलमेंट या इंडेफिनिट, उनको चाहिए था कि वो अपने आप को प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट के ऊपर कार्ड कम से कम ले लेते। मेरे ख्याल मुझे ये लगता है कि अगर आपने कहा कि आपका 19 में शो हो रहा था और उसके बाद आपने उसको प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया, आपके पास जो वीज़ा लग रहा है वो यूरोपियन सेटलमेंट होएगा या सेटलमेंट अंडर द यूरोपियन लॉ, जो ओल्ड स्टेटस था वो आपके पास है। अब आपको क्या चाहिए? एक तो ये करें कि आप उनको एक एप्लीकेशन कर सकते हो, जिस एप्लीकेशन के अंदर सॉरी कॉल आ रही है जी, लेट मी द कॉल मीनटाइम। हेलो, हेलो। हेलो जी, फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। जी, वही बात कर रहा हूँ, लाइव हूँ, बोले सवाल क्या आपका सर? अच्छा, लाइव बात कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गुल सर, मैं आपसे पहले भी बात हो चुकी है, तो एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जी, एलैबोरेट करें जी फरमाइए। कि ब्रेक्सिट के बाद सारी जो है यूरोपियन लॉज अब एप्लीकेबल नहीं है यूके, ठीक है ना ये बात? जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन आयरलैंड इज द ओनली कंट्री कॉमन लॉ, यानी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आया। इज दैट ठीक, आल्सो करेक्ट? ओके। आप सवाल पूछिए, मैं बता मैं आंसर इकट्ठा कर दूँगा आपको जी, प्लीज़। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कोई चीज जो कि यूरोपियन कम्युनिटी में था जब यूके, तो इसने एक रूल बनाया हुआ था कि जी सारे जो यूरोपियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये बेनिफिट है बीइंग यूरोपियन। ब्रेक्सिट के बाद वो कहते हैं कि ये बेनिफिट खत्म हो गया, व्हाटएवर स्पेसिफिक बेनिफिट। राइट। Does it apply to Ireland as well or not? ओके, कौन से बेनिफिट की बात कर रहे हैं? अगर प्लीज़ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे, आप लॉ पूछ रहे हैं मेरे, अगर मुझे स्पेसिफिक पूछे कि मुझे ये है, मुझे बताएँ कि मैं क्वालिफाइड नहीं करता, आई वुड बी इन अ बेटर पोज़ीशन। बहुत दिन से ट्रेस कर रहा हूँ, आपके ऑफिस फोन करता हूँ, वहाँ पे वो लेके नंबर जरूर लेते हैं, मैं क्या करूँ? मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे समझ ओके, नहीं आती, हालांकि मेरी आपसे बहुत दफा बात हुई है। अच्छा वो ठीक। पहचानते नहीं है, आप कहते हैं कि जी वो मेरे आज भी फोन किया ऑफिस में, वहाँ पे कोई आप अच्छा, नो, ओके। मेरा सवाल मेरे भाई आपसे ये है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आपका कोई पर्सनल इसका नहीं है? जाती मामला एज डॉक्टर फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं, जो कि यूरोपियन ग्रेजुएट नहीं है, वो जब यूरोप था ना, तो जो इनकी मेडिकल काउंसिल थी ना ठीक, ठीक। यूके की, वो रजिस्ट्रेशन देती थी विदाउट एनी एमआरआई, ठीक है, हमारा ठीक, यूरोपियन सिटीजन। ठीक, 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 ठीक। जब ये बाहर निकले 31 दिसंबर 2020 को, जी, ने ये बंद कर दी फॉर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक। लेकिन आयरलैंड के लिए ये चीज वैलिड होगी या नहीं होगी, ये आप स्पेसिफिकली बताएं, फिर मैं आपको इसके मामले में जो है एंगेज करूंगा। राइट, नो प्रॉब्लम। पहली बात, नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम आपको जो भी क्लाइंट हमें कॉल करे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे पता है कल या डे फॉर यस्टरडे अपनी कॉल और स्टाफ ने बोला था कि ऑफिस में नहीं था, और आज भी सिर्फ प्रोग्राम ऑफिस में मैं टाइम नहीं दे सका। तो पहले आपने बोला कि उसकी बातें हो चुकी हैं, तो कोशिश करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स नॉर्मली जो हमारा फीस पेड वाला है, अगर फीस पे हुई हो तो फिर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड है कि हम आपको कॉल करते हैं। लेकिन चलो, एनीवे आपने अपॉर्चुनिटी ली है, आप टीवी पे आंसर सुन सकते हैं मेरे भाई, मैं टीवी पे आंसर दे रहा हूँ।
ठीक है जी जी, आप बिल्कुल दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? राइट राइट ओके डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं, अभी जो पहले भी आपसे पहले कि मैडम का सवाल था उसको आंसर कर लें, काफ़ी हद तक वो लिंक है आपके साथ भी। मैडम को ये एडवाइस किया जा रहा था कि क्योंकि यूरोपियन लोग जिनको पहले ओल्ड यूरोपियन लॉ के तहत सेटलर स्टेटस मिला था, उनको कोई और इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने जून 2021 से पहले अपने आप को प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट के अंदर कार्ड लेना था। आपको ये सजेशन है कि अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वहाँ फाइंड नहीं हो रहा, तो अभी भी टाइम है कि आप उनको एक लेटर एप्लीकेशन करके अपना नए लॉ के मुताबिक प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर लें और साथ एक्सप्लेन कर दें कि ये मैं 35 ईयर से हमने यूके, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने काम नहीं किया, उसकी ये रीज़न थी, या मैं जो बेनिफिट ले रही हूँ उसकी रीज़न दे दें, बट दें और आपको ताकि प्री सेटलमेंट स्टेटस वाला जो आपका स्टेटस है वो रिकवर हो जाएगा। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप 65 से अबव हो गई हैं, तो आपको लाइफ इन यूके एंड जो B1 है दोनों एग्जेम्प्ट हैं, दोनों पास करने की जरूरत है, सिर्फ एप्लीकेशन करें और अप्लाई कर दें। बल्कि अबव दिस ये है कि अभी लास्ट कपल डेज में ये हुआ था 20 जून के बाद कि अगर जो एल्डर नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर उनके फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है, तो वो उसके भी फी अप्लाई कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन फीस से क्या डिसाइड करता है। लेकिन यस, अगर सिंपल वर्ड में पूछा जाए तो मैडम आपको हासिल करने की जरूरत नहीं है, लाइफ इन यूके B1 दोनों पास करने के बगैर भी आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकती हैं, क्योंकि जो आपकी एज है वो 65 से अबव है। तो 65 से अबव एज के जो लोग हैं, जब वो इंडेफिनिट या नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उनको इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं करनी। और सेकंड, अगर आपने जॉब नहीं भी की, बेनिफिट लिए, डिसेबल थी अनफॉर्चुनेटली, तो इससे भी कोई आपकी एप्लीकेशन पे असर नहीं पड़ेगा, तो आप उसमें डरे नहीं, अप्लाई कर दें। अब आते हैं डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू, आप कॉल करते हैं, प्यार करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन नहीं होती बात, आपने लाइव कॉल कर लिया। अब सवाल आपका ये आता है कि अब देखें, जो पार्ट इन सिंपल वर्ड में कहते हैं कि जो पार्ट यूके के साथ है आयरलैंड का, उसके अंदर यूके के लॉ अप्लाई हुए। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उसके अंदर यूके के लॉ ना पहले थे ना अब होंगे। वो रीजन क्या है, वो इंडिपेंडेंट है और वो अभी तक यूरोप के साथ है, उन्होंने ब्रेक्जिट नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने भी ये लॉज बने हैं, ये सारे इसलिए बने हैं कि आपके इमिग्रेशन स्टेटस के लिए। इमिग्रेशन स्टेटस का मतलब ये है कि अगर आपने यूके में आना हो, रहना, काम करना हो, तो उनके लिए ये कंडीशन है कि उन्हें ब्रेक्जिट के बाद जो लोग भी यूरोप से आएंगे उनको बिल्कुल सेम ट्रीट किया जाएगा, जैसे लेट्स से इवन यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एनी अरब कंट्री। तो लिहाजा कोई प्रेफर अपना प्रायोरिटी या कोई आपको स्पेशल नहीं आपकी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो आपका सवाल पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू आपकी स्टडी और प्रैक्टिस इन द यूके है एज ए डॉक्टर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर 1, उसके 2 स्टेज हम डिसाइड करते हैं। एक तो आपको ये है कि क्या जो आप यूरोप में, वो आयरलैंड में हो या यूरोप की किसी कंट्री में भी हो, जो आप वहां से मेडिसिन की डिग्री लोगे, क्या वो डिग्री इज एलिजिबल टू वर्क एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर इन द यूके, या आपको कोई एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। जैसे आप अगर एशिया से आते हो तो आपको प्लैप 1 प्लैप 2 करना पड़ता है, और उसके बाद आप क्वालिफाइड होते हैं टू वर्क एज ए डॉक्टर, एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर इन द यूके। अब ये बात तो जो मेरी आज की अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिपेंड करता है कि जो आपका मेडिकल बोर्ड है, आप जॉब अप्लाई करते हो तो वो डिसाइड करते हैं कि आपकी जो इक्विवेलेंसी है या जो लेवल ऑफ एजुकेशन है जिस अपने स्टडी से लिया है यूनिवर्सिटी से, क्या यूके क्या मेडिसिन डिपार्टमेंट उनको अलाउ करता है उसी डिग्री के ऊपर काम करने के लिए या नहीं। ये एक पार्ट है इन रेलेवेंट टू योर इक्विवेलेंसी ऑफ द एजुकेशन। और मुझे लगता है कि आज के दिन जो लोग से अगर मेडिसिन में डिग्री फिनिश करते हैं और वंस दे बी क्वालिफाइड, वो यूके के अंदर भी क्वालिफाइड होंगे टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। आज के दिन की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम सॉरी इफ मी रॉन्ग, बट आई विल कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीक पे इस पे प्रॉपर्ली डिटेल से बात कर दूं।
लेकिन साथ जो सवाल सेकंड आएगा आपका कि जब हम यूके में जॉब अप्लाई करेंगे तो हमारा इमिग्रेशन स्टेटस क्या होएगा? अब ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है कि जून 2021 के बाद जो भी यूरोपियन नेशनल, डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन या कोई भी इसी कंट्री से भी आप आओगे, तो आपको यू नीड टू गेट द स्पॉन्सर लाइसेंस व्हिच इज स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंडर आप आओगे और तभी आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हो। यूरोप नेशनल को इवन द जो born and brought up हुए हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन नेशनल हैं, उनको भी यूके में आने की इजाज़त होगी, सैर कर सकते हैं, उनको रहने की इजाज़त होएगी, लेकिन द लिमिटेड टू द 28 डेज़ और 3 मंथ और उसके बाद उनको अगर काम करना होगा तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा और यूके के परमिशन के लिए एक ही प्रिंसिपल है कि आपके पास कोर्स हो, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बाय द एम्प्लॉयर, जैसे अगर आप एनएचएस से हो या केयरिंग होम से हो या किसी जीपी से हो, तो आपके पास वर्क परमिट होना ज़रूरी है इन सब और उसकी जो कंडीशन पूरी करनी होगी। तो इसलिए आप आते हो कि मैंने डिग्री कर ली है और क्या वो डिग्री यहाँ पे मुझे एक्विवेलेंस है, मुझे अच्छा कोर्स पड़ेगा, इस पे तो मुझे लगता है कि आपको नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड जो बात है कि आप जॉब स्टार्ट करोगे या ऑफर आती है, तो देन वेयर यू स्टैंड अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, तो वो आपको मेरे भाई लाजमी कि दोबारा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वीजा लें और यहाँ पे काम करें। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी, फरमाइए मेरे भाई। मैं ना वकील साहब भाई आप लाइव हैं, सवाल पूछिए, फिर ब्रेक का टाइम होगा, फिर आंसर मैं ब्रेक के बाद दूंगा। जी प्लीज फरमाइए मेरे हाँ भाई। जी बोले मैं बात कर रहा हूँ, लाइव है, मेरे सवाल क्या मेरे भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो हाँ जी जी मेरे भाई, टीवी छोड़ दें, आप मुझे सवाल पूछें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा ठीक है। मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ नहीं कुछ। ओके देखिए, आज जो भी 2-3 सवाल आए हैं वो मोस्टली यूरोपियन पर जो लोग यहाँ पे यूरोप में रह रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा क्लियर एंड ओपन मैसेज है फॉर तमाम के लिए, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद पहले ब्रेक्जिट था कि हम जब भी कंपैरिजन करते थे या बात करते थे, हम कहते हैं यूके एंड यूरोप के अलावा ये आंसर है। हम कहते हैं कि सिर्फ जो लोग यूके में जिनके पास यहाँ पे परमानेंट स्टेटस इंडेफिनिट रिमेन है या नेशनैलिटी है या लोग यहाँ पे लीव के ऊपर हैं, उनके अलावा जो भी वो किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उनके लिए वो लॉज़ सबके लिए सेम अप्लाई हो रहे हैं, वो रिगार्डलेस वो यूएसए से हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो एशिया से हैं, इवन फ्रॉम नॉर्थ टू ऑनवर्ड। अगर वो यूनाइटेड किंगडम के बाद किसी भी और कंट्री से कोई नेशनल होएगा, जब यूके में काम करना चाहेगा, तो वो तमाम उसको शराइत पूरी करनी होंगी जो नॉन सेटल्ड या नॉन ब्रिटिश सिटीजन के ऊपर अप्लाई होती है। तो जो डॉक्टर साहब का सवाल था वो भी जैसे कहा कि यस उनको डिग्री वाला एक सेपरेट इशू है और उनकी जो जॉब वाला एक डिफरेंट डिस्कशन होएगी कि उसके ऊपर उनको एक कैसे एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन जैसे कहा कि मोस्ट लाइकली चांस है कि क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इन्होंने कोई पैरामीटर्स नहीं निकाले या कोई कंडीशन नहीं बनाई कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी डिग्री करोगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा या एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए वो जो यूरोप से क्वालिफाइड होंगे इज मोर लाइकली द चांस कि उनको विदाउट गोइंग टू फर्दर कोर्स एंड एनी एडिशनल सर्टिफिकेट वो क्वालिफाइड करेंगे यहाँ पे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये उनका एक रेलेवेंट सवाल था। जो आखिरी कॉलर ने सवाल पूछा था, अगर वो दोबारा कॉल कर लें, मच अप्रिशिएट फ़ोन अवेलेबल है तो ताकि उसको आंसर किया जाए और उसकी बात प्रॉपर एक्सप्लेन की जाए। प्लीज़ यू कैन कॉल मी बैक। अभी मेरे ख्याल में कुछ और कॉल्स हैं, लेते हैं मीन टाइम कॉल्स। एक हेलो जी गुलशन जी सर, आप लाइव हैं, बोले सवाल के मेरे भाई आप। जी मैं वो आपसे बात कर रहा था, आप मेरी
जी प्लीज। मैंने ये कहा था कि जो यूरोपियन those doctors were within Europe, but they have qualified from third world countries like Pakistan, India, Bangladesh. जी They didn't have to do the lab because of their European nationality. ओके This was the question. आप ये कह रहे हैं कि यूरोपियन जो रह रहे हैं उनको वो नहीं देना पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं ना कि Brexit से पहले कोई पाकिस्तान से ग्रेजुएट किया हुआ यूरोप जर्मनी वगैरह कहीं रह रहा था, वो यूके आना चाहता, उसको प्लान की जरूरत नहीं। ठीक है, उसकी इंग्लिश का चेक कर लेंगे वो कि इंग्लिश भी है तो उसको नहीं। ये मैं आपको लॉ बता रहा हूँ। राइट अब उन्होंने कहा कि ये खत्म हो गया, लेकिन आयरलैंड के लिए चूंकि आयरलैंड का पहले भी इनका कॉमन लॉ है, वो भी आप जो बात है, आयरलैंड वालों को 21 जून के बाद कोई चेंज नहीं आई। इनको उसी तरह ही जाके ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी मतलब बगैर किसी मेट वगैरह के इनको काम भी मिलता है। राइट ये अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। मुझे माइंड नहीं थोड़ा सा एक कॉल और आ रही है, कॉल काफी प्लीज शॉर्ट करें सवाल को। हेलो 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 जी मैडम, जस्ट मैडम आप होल्ड करना फॉर 1 सेकंड के लिए, एक और कॉल मैं बंद कर दूं फिर आपको मैं कॉल करता हूँ। 1 सेकंड इफ यू डोंट माइंड प्लीज। ठीक है। आती वो कॉल कट कर गए। जी बोले मैडम, आपका सवाल क्या है जी? नहीं, और सवाल तो बस मेरा जो मैंने पूछा था वो बता दिया था उन्होंने। राइट तो क्योंकि आपने मुझे बोला कि फोन दोबारा से करो। अच्छा, शायद आई थिंक नंबर दोबारा डालोगे। सॉरी, आपको सवाल मिल गया। थैंक यू मच, अप्रिशिएट। तो नो प्रॉब्लम जी, ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके राइट। देखिए वो थोड़ा सा नंबर का इशू आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग का इशू आ जाता है सब समटाइम कंट्रोल से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे काइंडली रिक्वेस्ट की थी, वही बात अगेन सर, कॉल आ रही है साथ साथ। हेलो जी, हेलो हेलो जी, फरमाइए सर, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका जी? हाँ, मैंने कॉल किया, मैंने अपना वकील साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी भाई जी, ਤੁਸੀਂ लाइव हो, बोलो सवाल की अपना जी। आप लाइव है, मैं रियाज गुल बोल रहा हूँ जी। मेरे भाई, मैं रियाज गुल बात कर रहा हूँ, बोले सवाल की आपका, लाइव है आप। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ना पूछना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ मैं जवाब दूंगा अपना ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ब्रेक तो बाद अगली ब्रेक तो बाद जी सवाल की अपना ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। भाई जी मैं दसो सवाल की अपना मेरे। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ हाँ जी ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ठीक है, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਡਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। 60 साल ज्यादा हो गए। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ओके राइट, थैंक यू जी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ टीवी, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ आंसर प्लीज, नो प्रॉब्लम, वाली गल सुन रही राइट। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आज के दिन जो लॉ है वो ये कहता है कि आप यूके में कम से कम 20 ईयर्स यहाँ गुजारेंगे और उसके बाद आप क्वालिफाइड करेंगे कि यहाँ पे लीव टू रिमेन अप्लाई करें। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ यूके में एंटर होते हो या आप यहाँ पे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो 7 साल लॉ आता है। अभी तक 5 साल का कोई लॉ नहीं आया। मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, ऑन द डे ऑफ द 5th ऑफ जुलाई या 6th ऑफ जुलाई, लेकिन कल चेंज हो जाए पता नहीं, या प्रपोजल चल रही है तो पता नहीं। लेकिन यस, अगर आपको 10 साल हो गए हैं तो फिर भी आपको चाहिए कम से कम यूके में रहने के लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन करनी चाहिए। हम हमेशा तमाम व्यूअर्स को, कॉलर्स को, क्लाइंट को एक एडवाइस करते हैं कि अगर आप यूके में हैं या तो आपके पास वीज़ा हो या कम से कम आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन हो उसके साथ पेंडिंग हो,
अदरवाइज़ विदाउट वीज़ा यहाँ पे रहोगे, तो आप हमेशा थ्रेट है, डर है, फ़ियर है कि किसी वक़्त भी आपको स्टॉप करके आपको वापस भेज सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में आप अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल दें और साथ आपने कहा कि मेरे वकील ने डाली हुई है, तो फिर आप उसको चेज़ कर लें कि कौन-सी एप्लीकेशन है, क्या चल रहा है। और जो आपका थर्ड सवाल था कि क्या 5 साल के ऊपर आपको वीज़ा मिल रहा है यहाँ सेटलमेंट का, आज मैंने देखा नहीं, और मैंने को पढ़ा नहीं, शायद भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरा ख़्याल है कि 5 साल रहने के बाद सीधा सेटलमेंट मिलना वो अनफॉर्चुनेटली मुश्किल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे विदाउट वीज़ा रह रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि वकील साहब जो भी काम कर रहे हैं उससे बातें करें, उससे पूछें क्या ऑप्शन और है। अगर लेट्स से कि आप उससे मुत्तमिन नहीं हो रहे या आपने किसी और वकील से सेकंड ओपिनियन लेनी है, तो मोर देन वेलकम, आप हमें विज़िट कर सकते हैं, दफ्तर में अपने कागज़ लेके आएँ, कौन-सा आपका केस है, क्या डाला हुआ है, तो देन माइट बी आई विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू गिव द आंसर। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। फिर वापस, क्योंकि डॉक्टर साहब की कॉल 2 दफ़ा आई है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा-सा और ब्रीफ़ कर दें। डॉक्टर साहब, मैं हमारे यहाँ पे यूके के अंदर या भी तमाम जो डेवलप्ड कंट्री में अच्छी बात ये है कि अगर नॉलेज हो तो वो उस पे अपना कमेंट्स करते हैं, वरना कहते हैं कि सॉरी मैं इसमें मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। जो सेम आपका सवाल है, मैं ये सब चीज़ कहूँगा, मैं सर्च करके नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लूँगा। लेकिन आइडियली जो भी मामलात हैं कि आपने कहा कि इक्विवेलेंसी या काम करने की परमिशन या उस ड्यू को एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, मेरे ख़्याल में आइडियली आप 2 चीज़ों में फिर अभी भी बात चल रही है कि पाकिस्तानी लोग जो यूरोप में काम कर रहे थे, क्या वो यूके में आएँगे या उनके पास स्टेटस वहाँ पे क्या है? और अगर उनके पास यूरोपियन स्टेटस है, तो वो यूके में कैसे आएँगे? या उनकी जो डिग्री है, क्या उनको एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बात आप फर्स्ट पहले स्टेटस कर लें और बाद में आप कर लें उसके क्वालिफ़िकेशन, या पहले उसकी करेंसी की बात कर लें और बाद में स्टेट की बात करें। बात जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे यूके के अंदर या रहने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो शायद ये 2 सवाल होंगे, अगर आपका सवाल यूके के रेलेवेंट है। बट अगर आपका सवाल है कि आपने यूरोप के बारे में बात करनी है, मैं उसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरे भाई। और बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे रहने के लिए इक्विवेलेंसी का पता चलेगा आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट से, और जो स्टेटस क्या है, वो मुझे अंडरस्टैंड है कि आपको यहाँ पे रहने के लिए आप आओगे, तो आपको कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ और थोड़ा-सा रिसर्च करके नेक्स्ट वीक इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँ, और ताकि आपको एक आंसर मिल सके और उस पे आप एक्शन ले सकें। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, जी फरमाइए भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं मायरा बोल रही हूँ। जी, मैडम पहले तो मैंने फरमाइए। आपका शुक्रिया अदा करना था अच्छा, कि आपकी हमने वो बेटी का रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिशियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, अच्छा, अच्छा, वो हाँ, आज ठीक, आ गया। ठीक, आप क्लाइंट हैं हमारे, ठीक। या तो जी, उसमें आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलो और वेलकम। मैंने सवाल मेरा ये था कि अगर मैंने अपने हस्बैंड का भी अप्लाई करना है, राइट। तो आप हम सेम डे अप्लाई करें या आपकी डिफरेंट सर्विसेज लें और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? अब इनकी एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में सुना रहा हूँ। जी, सॉरी? अब आपने अपने हस्बैंड की एक्सटेंशन अप्लाई करनी है ना, मेरे ख्याल में सुना रहा हूँ। हाँ जी, उनकी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा थैंक यू। आप टीवी पे हमारा आंसर सुनिए। मैं बंद कर देता फ़ोन कॉल, मैं टीवी पे आंसर करता हूँ, ठीक है? ओके, ओके। थैंक यू। एक और कॉल आ रही है, हम लेते हैं पहले कॉल, फिर आंसर करते हैं इकट्ठे। हेलो, आई थिंक एक और कॉल आ रही थी। राइट। मुझे थोड़ा-सा ये रिकॉग्नाइज़ हो रही है आपकी वॉइस, मायरा, कि आप हमारी क्लाइंट हैं। थैंक यू, आपने मेंशन भी किया। लेकिन जो बेटे का वीज़ा लग के आ गया, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो आपको। सेकंडली जो आपके अपने फैमिली का बोला एक्सटेंशन के लिए, अगेन जो भी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है आपने, सारी की सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो रही हैं। और जो फ़ास्टैग की बात है, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो मुझे याद पड़ता है कि शायद आपकी फर्स्ट वीज़ा मिलना है आपको, या अप्लाई किया था या एक्सटेंशन है। तो उसके लिए यस, जो लोग यहाँ पे किसी भी लिमिटेड लीव रिमेन पे रह रहे हैं, जब एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, उनके पास राइट है कि वो
दोनों में से जौन सी ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, या वो नॉर्मल सर्विस कर लें, या अगर फास्ट ट्रैक पे चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक के लिए जो नॉर्मली वो डिसीजन लेते हैं वो 24 आवर्स कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3-4 दिन में आ जाता है। और जो नॉर्मल है वो 3 माह से 4 माह लग रहे हैं, लेकिन हम उसकी पॉलिसी ये है कि 6 मंथ और सम टाइम 1% और 5% उसमें 6 माह से ज़्यादा भी लग सकता है। अब सेकंड सवाल आपका ये आता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं। मुझे शायद जो शक पड़ती है कि आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन है अंडर द ह्यूमन राइट्स 10 साल वाली बेस के ऊपर, वही तो आपने तमाम वो प्रूफ देने हैं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे यहाँ पे आपके सेटल हैं, उसके बाद आपका जो स्टेटस है, जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग है, और प्लस आपकी के पास जो अकोमोडेशन है उसके प्रूफ देंगे, जो उनके नाम पे कोई लेटर है वो देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो मेनली बात आ रही है वो ये कि आपकी और आपस में जो एज ए फैमिली यूनिट जो टाइज हैं, रिलेशनशिप है, इंटीग्रेशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फाइनली कि आप उनका वापस जाके अपने होम कंट्री में रीसेटल होना बहुत मुश्किल है, और उसका जो भी आपके पास एविडेंस है। बट एज फार जब हम ये चीज़ें साबित कर जाते हैं कि यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, वो यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप हुए हैं, या वाइफ है वो यहाँ पे सेटल्ड है, जॉब है हमारी, और ये तमाम चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो गई हैं कि इफ़ आई गो बैक टू माई होम कंट्री, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू बी रीसेटल्ड विदाउट माई फैमिली, और फैमिली वहाँ जाके रह नहीं सकती। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। और दूसरी बात ये होती है कि मैं हमेशा अपने कोलर्स को कहता हूँ, ये क्लाइंट को, कि आप कोशिश करें कि जो क्लेम करना है वो आपने द नेटिव कंट्री के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया करें। जब आप यूके में रह रहे हैं तो आप इस कंट्री के नेटिव सिटीजन हैं। जैसे अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आए हो तो पाकिस्तान और इंडिया जो आपका वो नेशनल कंट्री है, और जो आपका नेटिव है, और नेटिव के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूके के खास तौर पे, जब उनको प्रोड्यूस करोगे बिफोर द इमिग्रेशन ऑफिसर जज, तो वो ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है। अब आपका जो ज़्यादा क्लेम होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि हम यूके में रह रहे हैं, फैमिली है, सेटल्ड है, और ये हमने इंटीग्रेशन कर ली है, ये हम वॉलंटरी काम कर रहे हैं, ये हमारी फाइनेंशियल हमारी टाइज हो गई हैं, और हमारे बच्चों की जो टाइज बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें आपको नंबर 1 प्रोवाइड करनी आसान है, उसको वेटिंग करना आसान है, और उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए आपका जो क्लेम विद इन कंट्री एज ह्यूमन राइट्स वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, उसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके फेवर में डिसीजन देना उतना ही आसान होएगा। तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट जैसे भी आप पहले करती हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको उसी के मुताबिक आंसर कर दें। मुझे लगता है कि कॉल फिर मिल रही है, आ रही है। हेलो Hello? हेलो Yeah. जी, डिड यू कॉल मी दिस नंबर? Yeah, I received a first missed call. So अच्छा, आई थिंक ये बार बार कंट्रोल से मिसकम्युनिकेशन हो रही है। राइट, तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। आज के दिन जितने लोग यहाँ पे विदाउट वीज़ा रह रहे हैं, जब वो एप्लीकेशन करते हैं फॉर द लीव टू रिमेन, या अपने आप को स्टेटस को लीगलाइज करने के लिए, तो उसकी कंडीशन ये है कि आपने यूके में कम से कम 20 ईयर्स यहाँ गुजारे हों। अगर आप विदाउट फैमिली हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे फैमिली है या बच्चे हैं, दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। इसी तरीके से जो यूरोपियन वाली बात हो रही थी, उसके ऊपर बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली इनका लॉज बन गए हैं या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि जो लोगों ने मैक्सिमम जो भी टाइम बढ़ते बढ़ते एंड जून 2021 आया है, 2021 से जो यूरोपियन नेशनल या उनके डिपेंडेंट यूके में आ गए हैं, तो उन पे नए लॉ नहीं आएंगे। अदरवाइज जो लोग उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा कोर्स लेटर लेके उसी तरीके से आपको सेटलमेंट होएगी, काम करने की परमिशन होएगी, जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को है। ये 2 चीज़ें बहुत ही कॉमन कंसिडर करनी चाहिए। और थर्ड जो सवाल ज़्यादा जो उछा रहा था आज जो मैंने देखा है, वो इसी पे क्या आपको फास्ट ट्रैक में जा सकते हो? यस, होम ऑफिस के अंदर आज के दिन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, या आप नॉर्मल एप्लीकेशन कर सकते हैं, और मोस्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रायोरिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जो हमारे क्लाइंट कहते हैं, आपने एडवाइस कहा था लेकिन हुआ नहीं।
अब जब आप एप्लीकेशन मुकम्मल कर लेती हो, कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब फीस पेमेंट के प्रोसेस पे जाते हो, दैट टाइम आपके पास ऑप्शन आती है कौन सा आपने ऑप्शन ऑप्ट करनी है। अब सम टाइम देखा है या तो ड्यू टू द लैक ऑफ स्टाफ है या शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, किसी भी रीज़न से आपको प्रायोरिटी सर्विस की जो अपॉइंटमेंट है वो सम टाइम नहीं मिल रही होती। हमने भी कई बार ट्राई करते हैं, मतलब सम ऑड आवर्स में चेक कर लिया, इवन आवर में चेक कर लिया, इवन सम टाइम इन 2 o'clock इन द मॉर्निंग, तो फिर हम क्लाइंट को कहते हैं कि भाई ये यूज़र नेम पासवर्ड है, हम एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे ट्राई कर लें, अगर आपको मिल जाए। लेकिन सम हो ईज़िली मिल जाती है और सम टाइम थोड़ा देर लगती है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको दोनों सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, जिस पे किस पे भी आप एप्लीकेशन करना चाहें। तो ये थोड़ा-सा ब्रीफ था आज के जो ज़्यादा सवालों के बारे में। इसी तरीके से जिन्होंने हमें कॉल किया, कुछ हमारे क्लाइंट भी थे, जिन्होंने कॉल किया, सराहा उनका शुक्रिया और मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम 6 o'clock मुलाकात होगी, 6 to 7 PM। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।